নমস্কাৰ মিড ডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ মৰিয়নিৰ ডিছয় ভেলীত নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ অসমৰ প্ৰশাসনৰ পুৱাৰে পৰাই আৰক্ষী CRPF আৰু অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন কমাণ্ডৰ বৃহৎ দলৰ উচ্ছেদ অভিযান মৰিয়নিৰ নিউ খুনৱাল বনগাঁও ভৱানীপুৰ অঞ্চলত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ উচ্ছেদস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশত বাধা দিছে প্ৰশাসনে উল্লেখযোগ্য যে 27 মেত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওপৰত যি গুলী বৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ হৈছিল সেই ঠাইত চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান উক্ত স্থানত অসম আৰক্ষীৰ অস্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণত বাধা আৰোপ কৰিছে নগাই জনাইছো শেহতীয়া খবৰ এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নিৰ ডিছয় ভেলীত নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰিছে অসমৰ প্ৰশাসনে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী CRPF আৰু অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন কমাণ্ডৰ বৃহৎ দলৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে মৰিয়নিৰ নিউ খুনৱাল বনগাঁও ভৱানীপুৰ অঞ্চলত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উচ্ছেদস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশত বাধা দিছে প্ৰশাসনে উল্লেখযোগ্য 27 মেত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওপৰত যি গুলী বৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই ঠাইতে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে উক্ত স্থানত অসম আৰক্ষীৰ অস্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণত বাধা আৰোপ কৰিছে নগাই আৰু তাৰ পাছতে এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নিৰ ডিছয় ভেলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰিছে অসম প্ৰশাসনে পুৱাৰ পৰাই আৰক্ষী CRPF আৰু অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন কমাণ্ডৰ বৃহৎ দলৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে শেহতীয়া পৰিৱেশ জানিবৰ বাবে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ মৰিয়নিৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু নগাৰ উচ্ছেদ চলি আছে সেই ঠাইত শেহতীয়া কি স্থিতি এতিয়া কৃপাঞ্জল চাওক যেহেতু 27 মেৰ দিনাখনি ইয়াত এক গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি ইয়াৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সাংবাদিকৰ দল আৰু স্থানীয় লোক ইয়ালৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া সেই নগাৰ যি বেদখল পৰিদৰ্শন কৰা অৱস্থাত এটা নগা দুৰ্বৃত্ত দলে ইয়াত গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উদ্দেশ্যি আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল যাৰ ফলত আচলতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিব লাগে কিন্তু এই যিহেতু এমাহ পাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আচলতে অসম যিহেতু ইয়াত GP সিং আহিছিল তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যি ইয়াৰ দুইখন প্ৰশাসনৰ মাজত যোৰহাট জিলা আৰু গোকচং প্ৰশাসনৰ মাজত ইয়াত আলোচনা হ'ব আৰু ইয়াত নগাৰ বেদখল যি উচ্ছেদ কৰা হ'ব এনেধৰণৰ কথা বতৰা চলিছিল কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু নগাৰ কিন্তু আগ্ৰাসনটো চলি আহিছিল তেওঁলোকে নতুনকৈ পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এনে অৱস্থাত আচলতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিশাৰ পৰা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নগাক ভেটিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে যি নগাৰ যি বেদখলকৃত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক যোৰহাট জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত বৰ্তমান খুপনি পুতিছে আৰু তেওঁলোকে মোৰ পিছফালে যি দেখিছে তেওঁলোকে ইয়াত অস্থায়ী এটা কেম্প বনাবলৈ লৈছে ইয়াত কামাণ্ডো বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইয়াত পুৱতি নিশাৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক অসম আৰক্ষী লোক আহি পিনি ইয়াত নগাক যিহেতু ভেটিছে আৰু ইয়াৰ পৰা নগাৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ যি নগাই যিখিনি আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিছে সেইখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে নগা প্ৰশাসনৰ লোকক তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু নগা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ তেওঁলোকে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল আহি ইয়াত তেওঁলোকেও অসম আৰক্ষীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে যিহেতু এইটো অঞ্চল তেওঁলোকৰ মতে এইটো অঞ্চল নগাৰ অঞ্চল ইয়াত অসমৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত ক'ব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চলি আছে কিন্তু অসম যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যি ডিছয় ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এই বনাঞ্চলত যাতে নগাৰ আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে যিহেতু আমি খুব এক দুৰ্গম অঞ্চলেদি আহি পিনি এই অঞ্চলত যিটো উপস্থিত হৈছোহি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আমি খোজে পাহাৰ বগাই আহিছোঁ আৰু আহি ইয়াত দেখিছোঁ যে অসম আৰক্ষীসকলে লোকসকলে তৎপৰতাৰে ইয়াত এটা অস্থায়ী কেম্প বনাবলৈ তেওঁলোকে যুঁজা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে মোৰ লগত থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে ছাৰ পদক্ষেপ লৈছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী স্থানীয় লোকে প্ৰশংসা কৰিছে কি ক'ব চাওক আমাৰ ইয়াত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি অসম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ যি সীমা সমস্যা চলি আছে সেই সময়ত আমি কাম কৰি আছোঁ গতিকে এই বিষয়ে বিশেষ জানিবলগীয়া থকা ছাৰসকল আছে এই ইতিমধ্যে বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেটসকলো আহি পাইছে আলোচনা কৰা হৈছে আপোনালোকক ছাৰসকলে নিশ্চয় জনাব যিহেতু এইটো অঞ্চল পূৰ্বতে দেখিছে নগাৰ সক্ৰিয়তা দেখিছে নগাৰ যথেষ্ট হাবি বন কাটিছে ইয়াত পাহাৰ কাটিছে যিহেতু এতিয়া নগাৰ অৱস্থিতি কেনেকুৱা ইয়াত কি চাওক এতিয়াও মানে আমি তেওঁলোকে ছাৰহঁতে আলোচনা কৰিছে মই ছাৰহঁতে আপোনালোকক জনাব এই বিষয়ে কি ক'বলগীয়া আছে ঠিক আছে নিশ্চয় যথেষ্ট এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ অভিযান আৰু যিহেতু সীমা বিবাদ চলি আছে সীমা বিবাদ অতি শীঘ্ৰেই তাক নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকো তেওঁলোকে কৰাৰ পাছত এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছো জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ শেহতীয়া এই খবৰখিনিৰ বাবে আপোনাক আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত আৰক্ষী গুলীবিদ্ধ
আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ৰাজবাবু সিং নামৰ এজন কনিষ্টেবল ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টেবল ৰাজবাবু সিং কনিষ্টেবল ৰাজবাবু সিঙক লৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছিল অভিযান নিশা ঘগুৱা পাহাৰত চলিছিল অভিযানৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৰাজবাবু সিঙে পলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় অভিযুক্ত কনিষ্টেবলজন কে সিন্ধুক নামৰ এজনক বিচাৰি চলোৱা হৈছিল এই অভিযান অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড কে সিন্ধুক সঞ্জু বৰদলৈ আৰু সত্য বৰদলৈ নামৰ যুৱককো আটক কৰা হৈছে অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে সঞ্জু আৰু সত্য বৰদলৈক অনা হৈছে লতাশিল থানালৈ AS01EF4480 এই নম্বৰৰ বাহনখনেৰে কৰা হৈছিল অপহৰণ 23 জুনত অজিত দাসক কৰা হৈছিল অপহৰণ জনাইছো শেহতীয়া তথ্য অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্তক গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ৰাজবাবু সিং নামৰ কনিষ্টেবলজন ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টেবল ৰাজবাবু সিঙক লৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছিল অভিযান নিশা ঘগুৱা পাহাৰত চলাইছিল অভিযানৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৰাজবাবু সিঙে পলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় অভিযুক্ত কনিষ্টেবলজন কে সিন্ধু নামৰ এজনক বিচাৰি চলাইছিল এই অভিযানটো অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড কে সিন্ধু সঞ্জু বৰদলৈ আৰু সত্য বৰদলৈ নামৰ যুৱককো আটক কৰা হৈছে অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে সঞ্জু আৰু সত্য বৰদলৈ অনা হৈছে লতাশিল থানালৈ উল্লেখ কৰিব পাৰি এইখিনিতে AS01EF4480 এই নম্বৰৰ বাহনখনেৰে অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 23 জুনত হৈছিল অজিত দাসৰ এই অপহৰণ কাণ্ড পুৱতি নিশা 6:30 অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই দুৰ্বৃত্তকেইটাই আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু ন তথ্য নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় হেঙেৰাবাৰীত অনুষ্ঠিত সভাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নড্ডাই দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি কৰে উক্ত সভাতে নৱনিযুক্ত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা অংশ লৈছে সভাত প্ৰতিখন জিলাতে জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই নিজ নিজ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত উপস্থিত থাকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা यानी जो मोदी जी ने किया है वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी इसको फॉलो करें और वो उन्होंने कहा कि ये आपने इकोनॉमिक इश्यूज को इसके साथ साथ एड्रेस किया उसमें दो मुख्य बातें कही एक तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमें निर्णय पिछली बार मार्च महीने से लेकर के छठ तक देने का तय किया था और इस बार अप्रैल महीने से लेकर के इसको दीपावली तक देने का तय किया है मित्रों मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा जिस कार्यक्रम के लिए हमने 10 जुलाई चुना है 10 जुलाई से हमारे लोग इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जुड़ेंगे मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ 10 जुलाई से आगे जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति अपने कार्य योजना में इसको जोड़े और किस तरीके से ये जो मोदी जी के द्वारा और हेमंत बिस्व शर्मा जी के द्वारा उसमें समर्थन किया गया है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये जो लास्ट माइल डिलीवरी है जो पात्र है उस तक पहुंचाने की व्यवस्था को पुख्ता करें मजबूती प्रदान करें ताकत दें और सही मायने में ठीक ढंग से हो सके इसकी चिंता करेंगे तो अच्छा रहेगा मित्रों हम सबको मालूम है कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आयोजन किया था और इस आत्मनिर्भर भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का तय किया इसलिए भी इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना लगभग 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए एमएसएमई सेक्टर के लिए और जिसमें से लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं जो एमएसएमई सेक्टर तक पहुंच गए हैं मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और मैं निवेदन करूंगा असम की सरकार से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कि आप ये जो एमएसएमई ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एसोसिएशंस हैं
इनके साथ आप पार्टी को एंगेज करिए, सरकार को एंगेज करिए। ये 3 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया है, इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। आप देखिए एमएसएमई सेक्टर कितना इससे प्रोत्साहित हुआ, लेकिन उसमें एंगेजमेंट में हम और क्या मदद कर सकते हैं, हम उनकी लास्ट माइल डिलीवरी में और क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन के साथ पार्टी और सरकार को एंगेज करने की जरूरत होगी। इसको हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करते समय आप एक बात को ध्यान में रखें, ये लगभग 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खर्च होना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सही रूप में अच्छे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बन सके, इसकी चिंता आप असम की धरती पर जरूर कीजिए। पार्टी भी चिंता करे, सरकार भी चिंता करे। एफपीओ बनाने का काम नाबार्ड को दिया गया है, दूसरी एजेंसीज को दिया गया है। आप उनसे संपर्क कीजिए। लगभग 300 किसान एक एफपीओ में आएंगे। सही मायने में जेन्युइन किसान आए और जेन्युइन किसान की मदद हो और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए धरती पर ठीक ढंग से लग सके, इसको सुनिश्चित करना असम की सरकार की जिम्मेवारी है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इसको आप पूरा कीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट हमारे किसानों को जाना है, जिसमें 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाना है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी हम किसानों के साथ चर्चा करें। 2 लाख किसान को इसका लाभ होने वाला है। 2 लाख किसान के लिए हम कैसे ही क्रेडिट कार्ड का सदुपयोग वो कर सके, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से 5,000 रुपए का समर्थन और 5,000 रुपए का आर्थिक सपोर्ट, ये रेडी वाला, पेड़ी वाला, स्ट्रीट वेंडर्स को देने की योजना बनी। मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब, और ये 50 लाख रेडी वालों को मिलने की योजना बनाई गई है, इसमें भी पार्टी सजग होकर के आगे बढ़े और उसके साथ अपने आप को जोड़े तो अच्छा रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने कई बार कहा, लेकिन मैं असम की जनता से और असम के कार्यकारिणी से जब मैं मुखातिब हो रहा हूँ, जब मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपसे मैं इस बारे में भी चर्चा करूं। और वो ये है कि किसान नेता के रूप में तो देश में बहुत लोग पैदा, और किसान नेता के रूप में बहुत ही उन्होंने चर्चाएं दी, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप बताइए, एक स्कीम बता दीजिए आजाद भारत में कांग्रेस के टाइम में जो उन्होंने किसानों के लिए किया, एक स्कीम बता जिससे किसानों को लाभ पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं, अनेकों किसानों के लिए स्कीम चलाई और सही मायने में किसान को धरती पर मदद देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1,21,000 करोड़ रुपए होता था बजट एग्रीकल्चर का, वो बढ़ा करके 2.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसान को लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं। उसी तरीके से ये 14 माही को जो 8वीं किस्त दी गई, इस 8वीं किस्त में लगभग 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 9,500 करोड़ नहीं 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज को लगभग 2000 की अंतिम किस्त 14 मई को दी गई और 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। असम में 12 लाख किसानों को इसकी अदायगी की गई और 40 करोड़ रुपए 8वीं किस्त में खर्च हुए हैं किसानों के पक्ष में। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए असम में। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें मिनिमम प्रीमियम पर 3,000 रुपए की पेंशन ये किसानों के लिए। मित्रों, कभी हमने सोचा था, डिड वी एवर थिंक दैट ए फार्मर इज गोइंग टू गेट पेंशन? हमने कभी सोचा था कि किसान को भी पेंशन लगेगी और वो भी 3,000 रुपए महीने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको साकार करके दिया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से सब्सिडी में, फर्टिलाइजर की सब्सिडी में, डीएपी में 140% की सब्सिडी दी गई है। अगर 24 करोड़ रुपए का
400 रुपए का फर्टिलाइजर का बैग आता था तो आज वो 1200 रुपए का आ रहा है। यानी अब अगर आप 2400 रुपए खर्च कर रहे थे तो एक बोरी आज खरीदते हो तो एक बोरी आपको मुफ्त में मोदी जी की तरफ से मिलती है। इस बात को आप समझो कि 2400 में 2 बोरियां मिलेगी, ये आप ध्यान में रखने की जरूरत है। सॉइल हेल्थ कार्ड तो लोगों ने मजाक बनाया, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में चर्चा की, ये कैसा हेल्थ कार्ड? आदमी का तो हेल्थ कार्ड थोड़ा था, ये सॉइल का हेल्थ कार्ड कैसा होता? आज किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंपावरिंग द किसान, इंपावरिंग द फार्मर, उसके लिए लगभग 22 करोड़ कार्ड, 100% 22 करोड़ कार्ड ये सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ये किसानों के परिवारों को मिल चुका है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया 100% हो गया है। अब फर्टिलाइजर में किसी भी किस्म की बेईमानी नहीं हो सकती है, इसकी चिंता कीजिए। यही नहीं, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हुआ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी हुआ, अन्य स्कीमें भी हुई, मानधन योजना भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी लागू किया। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके माध्यम से भी जहां पानी की बचत भी हो और किसानों की खेती हरियाली में परिवर्तित हो जाए, इसकी भी चिंता की गई है। किसानों के लिए ही स्वामित्व योजना चल रही है। हम सब लोग किसान लोग गांव से आते हैं, हमारे गांव में मकान थे, लेकिन उस गांव के मकान को प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, हम उस पर बैंक में लोन नहीं ले सकते। उसकी नपाई जुताई के बारे में ये तय नहीं होता था कि ये इसका कोई हमको स्वामित्व मिलेगा, इसकी हमको कोई ओनरशिप मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाई और स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से किसानों की जमीन और उसमें बनी हुई प्रॉपर्टी, इसको नापने का काम किया गया और उसको उसके साथ प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम किया गया। अब उस कार्ड पर किसान भी लोन ले सकता है। वो प्रॉपर्टी कार्ड यह बताएगा जुडिशरी में भी और बाकी सब स्थानों पर भी कि वह इसका उपयोग करके यह उसकी जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी एंटिटी बन जाएगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, ये जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था उससे बचाएगा। और अभी तक 7 लाख लाभार्थियों को, 7 लाख बेनिफिशियरीज इससे बेनिफिट कर चुके हैं। लगभग 4,923 विलेज में 166 डिस्ट्रिक्ट में ये स्वामित्व स्कीम इसको लागू कर दिया गया है और ड्रोन से लगभग 46,492 विलेजेस का सर्वे जारी कर दिया गया है। यह स्वामित्व योजना के बारे में किया जा रहा है। मैं यहां भी निवेदन करूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपने तरफ से इसकी मॉनिटरिंग भी करें और स्वामित्व योजना के माध्यम से किसानों का जो सशक्तिकरण चल रहा है उसको पर्सनली मॉनिटर करके उसको भी पूरी ताकत प्रदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। आयुष्मान भारत में मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैं गया था असम में और उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम उसमें किया। आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं और इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और असम में 27 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, इसकी बेनिफिशियरीज हैं और इसमें से 1.5 लाख लोगों को ट्रीटमेंट मिल चुकी है और 18 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं चाहूंगा कि भवेश कलिता जी इसकी चिंता करें और सरकार से आयुष्मान के जो कार्ड बने हैं उनके लोगों से मिलने का काम, संपर्क करने का काम, उन लोगों को जो मोदी जी ने ये ताकत पहुंचाई है इसको बताने का काम, इसको हम बखूबी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अभी 45 दिन ही हुए हैं 45 दिन ही हुए हैं असम की सरकार बने, पर मुझे खुशी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे काम सर्बानंद सोनोवाल जी ने किए थे उसको गति देते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। गवर्नमेंट वर्क्स इन कंटिन्यूटी एंड स्पेशली व्हेन द सेम पार्टी गवर्नमेंट कम्स वी वर्क मोर इन कंटिन्यूटी। तो इसलिए हेमंत जी ने जो सर्बानंद सोनोवाल जी की स्कीम थी उनको आगे बढ़ाया, लेकिन 45 दिन में उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जो गति दी है इसके लिए मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं और उनको उसके लिए मैं शाबाशी दूंगा। आपने
गार्जियन मंत्री बना करके जो हर डिस्ट्रिक्ट को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है, साथ ही साथ जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बताता है कि मोर अकाउंटेबल आपने गवर्नेंस को बनाने का प्रयास किया है। ऑल्दो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट यू हैव मेड इट मोर अकाउंटेबल, और आपने उसमें बताया है। সেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বাহ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, য'ত জে পি নাড্ডাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছিল অসম প্ৰদেশৰ বাহ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। উপস্থিত আছে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু নৱনিযুক্ত সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আজিৰ পৰা দায়িত্ব ল'লে। কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই।